Today we are going to discuss the topic quantization of Bohr's orbit. As we know that an electron revolves around the nucleus in fixed energy states without radiating energy. That was postulated by Neil Bohr. And now we have to find the radius of those energy states in which electron can exist. According to Bohr's first postulate, Bohr's model according to first postulate of Bohr's model, electron can exist only in discrete energy states. And now we have to prove the quantization of radii of orbits of hydrogen atom. For this, we consider a hydrogen atom that in which an electron is moving around the nucleus in circular orbit. Let mass of electron is m. Velocity of an electron in nth orbit is Vn and radius of nth orbit is Rn. ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रॉन के मैस को हमने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है इनके दरमियान कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी जो सप्लाई करेगी नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन फॉर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। And that electrostatic force of attraction can be written as from Coulomb's law. As nucleus of hydrogen atom has one proton, so it has positive charge, and electron revolving around the nucleus has negative charge. So there is Coulomb's force of attraction between electron and proton and can be expressed as Coulomb's law आपने पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है, F is equal to K Q1 Q2 over R square। यानी दो चार्जेस हम लेते हैं। अब प्रोटॉन पे भी चार्ज E है और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे सेम होती है, पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगी अब हमारे पास, K दैट इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, Q1 की जगह आएगा चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 की जगह आएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय Rn² हमने लिया है। Rn इसलिए लिया है कि हम कह रहे हैं nth ऑर्बिट में है, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमने जनरलाइज कर लिया इस टाइम कि nth ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। So Fe will be equal to Ke square over Rn square, where K is Coulomb's constant and E is charge on electron and proton. As electron is revolving around the nucleus, so centripetal force is applied on the electron, and centripetal force is given by the expression Fc is equal to mv square over Rn. As we say that Coulomb's force provides necessary centripetal force to electrons, so Fc will be equal to Fe and mv square over Rn will be equal to Ke square over Rn square. Here we are writing here n in the subscript because we have to derive the generalized expression for any orbit that is we have considered nth orbit. यहाँ से देखिए Rn एक कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा, mv² is equal to Ke² over Rn. Say this is equation number 1. From Bohr's second postulate, we know that mvn Rn is equal to nh over 2 pi. हमने ये कहा था only those energy states are allowed for which orbital angular momentum is equal to integral multiple of h over 2 pi. So Vn will be equal to nh over 2 pi m और m और Rn को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास Vn निकल आएगा। अब हम Vn की ये वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, m एज इट इज़ रहेगा, Vn की ये वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन 1 में, सो nh over 2 pi m Rn square will be equal to Ke square over Rn। स्क्वायर ओपन कर दें
n square h square divided by 2 square will be 4 pi square m square rn square is equal to ke square over rn. Here n square will be cancelled out. Rn 1 rn will be cancelled out and we are left with 1 rn. So in the next expression हमारे पास क्या बचेगा? देखिए एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये देखिए एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर है हमारे पास, एक एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक आर एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर क्या बचेगा? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर एम, एक बच गया, एक आर एन बचा है और इक्वल टू के ई स्क्वेयर. So n square a square divided by 4 pi square m के ई स्क्वेयर को हमने इधर डिवाइड कर दिया, आर एन यानी रेडियस हमने फाइंड करना था तो उसको हमने सेपरेट कर लिया एक तरफ, तो आर एन हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वेयर. अब ये देखें हमने इस पूरे फैक्टर को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, एन स्क्वेयर के अलावा जो बाकी फैक्टर है इसमें देखें एज प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, के इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट. तो ये सारी वैल्यू जो है ब्रैकेट में ये क्या है, ये कांस्टेंट है. सो आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर. ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया रेडियस फाइंड करने का किसी भी ऑर्बिट का. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना होगा तो एन को हम 1 पुट कर देंगे, टू सेकेंड रेडियस ऑर्बिट का फाइंड करना होगा तो एन को 2 पुट करेंगे. इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब का हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट and the value of this constant a square over 4 pi square m k e square is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 होता है प्लैंक्स कांस्टेंट. पाई 3.4 पुट कर दिया हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31. के इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9. ई चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 0.053 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.053 नैनोमीटर. सो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर इंटू 0.053 नैनोमीटर आ गया ये हमारे पास. अब हम फर्स्ट ऑर्बिट का अगर रेडियस फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? we put n is equal to 1, so r1 will be equal to 1 square into h square over 4 pi square m k e square, और इस पूरे फैक्टर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये इक्वल है 0.053 नैनोमीटर के. नाउ इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज n आर एन इज इक्वल टू n स्क्वेयर इंटू r1. देखिए कि जो प्रीवियसली हमने इक्वेशन डिराइव की है ये वाली, इसमें ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू को, और ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, R1 के. जब हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये पूरा फैक्टर क्या बन जाता है, R1. तो हम इसको लिख सकते हैं आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर इंटू R1. इसी तरह से फिर हम सेकेंड स्टेट की एनर्जी भी ले सकते हैं. अगर हम रेडियाई फाइंड करें अगले डिफरेंट ऑर्बिट्स के, सेकेंड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, 4r1 यानी 2 स्क्वेयर होगा, n स्क्वेयर है तो सेकेंड n को 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वेयर हो जाएगा 4, 3 पुट करेंगे तो 9r1, 4 पुट करेंगे 16r1 एंड सो ऑन. आर एन इज इक्वल टू n स्क्वेयर r1. Hence it is proved that radius of the orbits of hydrogen atom are quantized. Certain discrete values of radii exist, that's why radius of hydrogen atom is quantized. यही हमने प्रूव करना था क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस को. नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का,
कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, अगर हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी हो तो किस एक्सप्रेशन से करेंगे? जो हमने बोहर सेकंड पास्टुलेट से वी एन का रिलेशन निकाला था, वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई m r, उसमें हम आर एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखें हमारे पास एक n कैंसिल हो जाएगा, एक h भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 कैंसिल आउट होगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/n h इंटू डिवाइडेड बाय 2 पाई k e स्क्वेयर। ये 2 पाई k e स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे NH पे। So it is proved that 2 is constant, pi constant, k is electrical constant, E is charge on electron, that is also constant, H is Planck's constant. So in this expression all these values are constants. So Vn is inversely proportional to principal quantum number. यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्लोली मूव करेगा हायर ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। ओके, अल्लाह हाफिज़।